audience, we are about to begin our next session on spirituality. And the panelists are already here. Please give them a big round of applause. Over to you, Anushka. किले से जो जुड़े नाते अभी तक याद है मुझे, यहीं दौड़े गिरे और संभले, यहीं जीते यहीं हारे, यहीं मुर्गा बने थे हम, यहीं दिन में दिखे तारे, पड़ी थी जो हमें लाते अभी तक याद है मुझे. These lines have been written by none other than Sindhian Manik Prabhu Chand Maharaj. He's got 42 years of experience in ITC. I think that's what I call it, consistency and loyalty. He's none other than Sindhian Deepak Haksar. To moderate a session, we have Suman Verma. He's GM, SRF Limited. We have Sindhian Dhyan Raj Manikchand Maharaj, who is a scholar, philosopher, guide, mentor, and spiritualist. And then we have Sindhian Anita Sehgal. She's written a book called Magical Body. She's a regression therapist, and she's also has a mind and body soul. Thank you, everyone. We are ready for the next session. Thank you so much. Good afternoon. Today's session, Spirituality, Living with Purpose, has two eminent speakers, Shri Dhyanraj Manik Prabhuji and Ms. Anita Sehgal. The session explores themes on spiritual transformation. What are we here for? What does our life mean? And what is the goal of life? So therefore, it gives me great pleasure to introduce my speakers, Shri Dhyanraj Manik Prabhu, my batchmate and fellow Sindhian. He carries the mantle, leadership, and legacy of a lineage of enlightened masters who in the early 19th century made a great impact and brought about a spiritual transformation, simplifying Vedanta to the common man in the lexicon that could understand and bring alive tenets of Hinduism that can be practiced in our daily lives. Shri Manik Prabhuji is the present head of Shri Manik Prabhu Samsthan, a premier socio-spiritual organization based in Maniknagar, Karnataka. As has been mentioned, he is a prolific writer, poet, philosopher, thinker, and educationist. Studied at the Scindia School from 67 to 75. He later graduated from Karnataka University. While pursuing collegiate education, he studied the Sanskrit language, the Gita, the Upanishad, the Vedanta Shastra under the guidance of his father and master Shri Siddharaj Manik Prabhu Maharaj, who himself was a Sindhian, 1956 Madhav House. He helped his father in founding the Manik's Public School, which today is one of the premier boarding schools of South India. He established schools for the differently abled and visually impaired children, and in recognition of these activities, the government of Karnataka accorded him the prestigious Rajya Prashasti Award. To preserve the profound and ancient Vedic wisdom, he established the first Veda and Sanskrit Pathshala of the North Karnataka region, where traditional training in the four Vedas and Shastras were imparted. He has toured extensively all over India and abroad and has delivered scholarly discourses on the application of Advaita Vedanta in practical life. In 2009, he ascended the holy Pitha of Shri Sadguru Manik Prabhu Maharaj Ji as its sixth Pithadipati and is ably carrying towards the spiritual legacy of his illustrious ancestors. It gives me now a pleasure to introduce our second panelist, Ms. Anita Sehgal Ji. She is a life coach, therapist, healer, and author. She's a qualified pranic healer, certified
clinical hypnotherapist and has done postgraduate diploma in regression therapy. She has mentored and provided life coaching and has over 13 years of hands-on experience of leading HR departments in large corporate organizations and in dealing with complexities of multi-dimensional human behavior. Interestingly, while going through her achievements, I find that she has extensive experience as a stock analyst and has gained valuable insights into the psychology of market participants impacting market mood. So perhaps at a later session, we might want to listen to this, because I know there are a lot of people who are interested in stock. We are therefore very fortunate to have these very two eminent speakers in the Soba Conclave, and I'm certain that in today's session, we'll get a glimpse of their profound wisdom and eloquence. At a time when the world is going through its own strife, war, disease, environmental challenges, religion and isms seems to have divided humanity. The additional strain of a fast-paced life, unbridled material desires have further threatened mankind, bringing immeasurable suffering and stress. Spiritualism and universal oneness provide us with a glimmer of hope in our journey, bringing out the best in us, encompassing high moral values, compassion, and universal love, and a very clear path, a vision in our quest towards self-realization. And before I conclude and request Suman, who's our moderator, batch of 1984, Ravindra House, and the son of a very revered teacher, Mr. Verma, whose poetry, which is now a part of a school song we sang this morning. To start the proceeding, I just want to take off on one point which Mr. Pawar had said. Somebody did ask me, why this session today? And I said that this session is because spiritualism is one of the key pillars of our school. And at a very young age, the children are embedded into this value system. It's like a sanskar. And what he mentioned was so true, that our practice of going to the Astachal to reflect, to contemplate, to meditate, and to prayer is a lifelong habit for many of us, including me. Today even it's a ritual of mine to sit in the night, to reflect on my day, and to unwind in that mindful space and connect to the higher consciousness. So anyway, we have, as I said, two eminent speakers, and I'm sure Suman is going to take this forward. Thank you, Suman. Thank you, Deepak sir, for setting the context and the warm introduction of our panelists. Here I must say Mr. Haksar's humility, honesty, and especially his spiritual quotient has played a prominent role in his career as a corporate leader. I must say he's been like a beacon to his team and to the people around him in the corporate world. Thank you, sir. Now coming to our panelists, सर्वप्रथम ज्ञानराज जी, पहला भाग आपके साथ। बहुत सालों से इंतजार हो रहा था आपका, और बड़े हर्ष और आनंद का विषय है कि आज आप हमारे बीच पधारे हैं। तो सोबा की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आए शहर में शहर भर अच्छा लगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। ज्ञानराज जी, हमारी वर्तमान की दिनचर्या काफ़ी भागदौड़ भरी है और तनाव और अनिश्चितता हमें घेरी हुई है। इसका प्रभाव हमारे सामान्य जीवन पर भी पड़ रहा है। मेरा यह प्रश्न है और हमारे ऑडियंस का भी यह प्रश्न होगा कि आध्यात्मिक ज्ञान का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है और इस ज्ञान की आज के युग में क्या प्रासंगिकता है। थैंक यू सुमन। आदरणीय प्राचार्य महोदय और मेरे सीनियर्स और मित्रों, आदरणीय मैडम, आपने अध्यात्म की प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अध्यात्म? अध्यात्म यानी क्या? जी, लोगों को ऐसा लगता है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो अध्यात्म है।
तिलक लगाना अध्यात्म है, रुद्राक्ष पहनना अध्यात्म है, लोगों की मन की बातें जानकर जो है पर्चियां निकालना अध्यात्म है, ज्योतिष अध्यात्म है, या कहें वास्तु अध्यात्म है। ये सारी चीज़ों को लोग अध्यात्म मानते हैं, किंतु अध्यात्म की जो डेफिनेशन है वो आपको कहाँ मिलती है? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। गीता में 8वें अध्याय की शुरुआत में भगवान ने कहा है कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म शब्द का अर्थ है स्वभाव। अब ऐसा है कि हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन अगर हम करें तो सारा गड़बड़ हो जाता है। स्वभाव का ट्रांसलेशन क्या होगा कि बिहेवियर कहेंगे हम, नहीं है, बिहेवियर नहीं है उसका अर्थ। स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव जैसे हम लोग सब मेरे ख्याल से 99% हम सब सिंधियंस हैं, तो सिंधियननेस जो है ना वो हमारा स्वभाव, उसको निकाल नहीं सकते आप। स्वभाव को जो है ना आप निकाल नहीं सकते। जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव जलाना है, दाहकता जिसको हम कहते हैं। आप अग्नि को यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर में जलाएंगे तो भी वो जलाएगी, आप उसको लंदन में जलाएंगे तो भी जलाएगी, पार्लियामेंट में जलाएंगे तो भी जलेगी, कोर्ट में जलाएंगे तो भी जलेगी, जहाँ भी आप उसको ले जाएंगे वहाँ वो जलेगी। अग्नि का स्वभाव है। तो स्वभाव शब्द जो है वो स्वरूप, नेचर जैसा आपने कहा वो है। तो हमारा जो नेचर है वास्तव में, हमारा स्वभाव क्या है, इसको जानना, इसका नाम अध्यात्म है, इसका नाम अध्यात्म है। और वो जो अध्यात्म है उसके बारे में ऐसा है कि देखिए हम लोग सब, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व क्या है? तो एक बॉडी है, एक माइंड है, एक इंटेलेक्ट है, इसी को हम अपना व्यक्तित्व मानते हैं। हमारी पर्सनालिटी क्या है? तो बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, यही हमारी पर्सनालिटी है, शरीर संघात जिसको कहते हैं। वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट ये तीनों भी जो हैं वो जड़ हैं, अपने आप में कुछ कर नहीं सकते। वो उनको चलाने के लिए, उनको प्रचोदित करने के लिए, उनके अंदर बोलने की, चलने की, सोचने की, सुख सहन करने की, दुख को जानने की ये जो शक्ति है वो एक अदृश्य ऐसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, वो उसी के कारण ये सब होता है। जैसा वेदों में कहा गया है, जैसे नचिकेता का प्रसंग है कठोपनिषद में, आप लोग सब जानते होंगे। तो यमराज से नचिकेता ने पूछा कि भाई वो आत्मा यानी क्या, वो परमात्मा यानी क्या, क्या व्हाट डू यू मीन बाय आत्मा? तो जो जवाब यमराज ने दिया है वो बहुत बहुत रिलेवेंट है और बहुत बहुत डीप है। उसमें कहा कि येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एतेनैव विजानाते किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। मतलब क्या इसका? जिसके कारण तुम शब्द को जानते हो, जिसके कारण तुम रूप को पहचानते हो, जिसके कारण तुम गंध को जानते हो, जिसके कारण तुम रस को चखते हो, वो जो शक्ति है वो शरीर के अंदर नहीं है, वो मन के अंदर नहीं है, वो बुद्धि के अंदर नहीं है, वो कोई और ही शक्ति है जो इस सब को चलाती है। उसी का नाम आत्मा है, उसी का ज्ञान अध्यात्म है। जी। तो ऐसा है कि जैसे अब आज के उदाहरण में हम ले तो अब मोबाइल फ़ोन जो है सबके पास है, हमारे पास। मोबाइल फ़ोन जो होता है उसकी एक बॉडी होती है, उसके अंदर एक सिम कार्ड होता है, उसके अंदर एक वो जो मदरबोर्ड जिसको कहते हैं, मैकेनिज्म जो भी उसके अंदर होता है जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन चलता है। ये तीन चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन अगर आप पकड़ के देखें, खोल के देखें तो क्या है? बॉडी है, उसके अंदर एक सिम कार्ड है, उसके अंदर एक मदरबोर्ड है। इतने से मोबाइल फ़ोन चलता है क्या? इतने से मोबाइल फ़ोन नहीं चलता। मोबाइल फ़ोन चलता है नेटवर्क के कारण। वो जो नेटवर्क है जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो सर्वव्याप्त है। जैसे परमात्मा की उपमा अगर आपको देनी है किसी से तो आज तो मैं नेटवर्क से देता हूँ कि चारों ओर फैला हुआ है। मोबाइल के अंदर भी है, मोबाइल के बाहर भी है, मोबाइल के दाएं भी है, मोबाइल के बाएं भी है, मोबाइल के ऊपर भी है, मोबाइल के नीचे भी है। उसी तरह से ये जो शरीर है हमारा जो शरीर संघात है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है, इसके चारों ओर किसी ने इसको व्याप्त करके रखा है। भगवान ने कहा गीता मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्त, मैंने इस सबको व्याप्त कर रखा है। तो वो जो आत्म तत्व है उसको जानना बहुत जरूरी है और उसी का नाम अध्यात्म है। और उसके बारे में भ्रांतियां हैं बहुत सी कि भाई
धर्म यानी अध्यात्म है क्या? नहीं, फर्क है। धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। वो दोनों भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने सिंधियननेस का उदाहरण दिया, तो स्कूल का ब्लेजर पहनना सिंधियननेस है क्या? नहीं है। अपनी ग्रे कलर की जो अपनी हाफ पैंट होती थी वो पहनना सिंधियननेस है क्या? नहीं है। शाम में अस्ताचल के टाइम पे कुर्ता पैजामा पहनना सिंधियननेस है क्या? नहीं है। मगर सिंधियननेस को कल्टीवेट करने के लिए ये सब करना जरूरी है जी। ब्लेजर पहनना जरूरी है, असेंबली में जाना जरूरी है, क्लासरूम में जाना जरूरी है। उसी तरह से अध्यात्म को सपोर्ट करता है धर्म। धर्म जो है वो अध्यात्म को सपोर्ट करता है। मत धर्म और अध्यात्म एक नहीं है, उसके अंदर भेद है। अब आपने पूछा उसकी प्रासंगिकता क्या है, मैं संक्षेप में बताऊंगा आपको कि ऐसा है कि हम सब लोग चाहते क्या है। ये इतना बड़ा कनक्लेव हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहते क्या हैं हम लोग? तो अगर हम हमारे जीवन को एनालाइज करके देखें तो हम ये पाते हैं कि हमको सबको सुख की अपेक्षा है। सब लोग सुख चाहते। हमने पढ़ाई क्यों की? सुख के लिए। हमने नौकरी क्यों की? सुख के लिए। हमने शादी क्यों की? सुख के लिए। बच्चे क्यों? सुख के लिए। सारा कुछ सुख के लिए है। मगर एक चीज आप बताइए, ये जो सुख हमको मिलता है वो इन वस्तुओं से मिलता है क्या, जो बाहर की जगत की वस्तुएं हैं? इन वस्तुओं, वेदांत कहता है कि बाहर की वस्तुओं के अंदर सुख देने का सामर्थ्य है ही नहीं। अगर होता तो वो सबको सुख देता, यूनिवर्सली सबको देना चाहिए ना भाई। अब जैसे ये शॉल है, अब ये शॉल यहाँ दिल्ली में थोड़ी सी सर्दी है तो अब मुझे ये सुख है, मैं ये वाली शॉल पहन के मैं हैदराबाद जाऊंगा तो मैं तो भून जाऊंगा। तो शॉल में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। उसी तरह से जिलेबी है, अब जिलेबी खाएंगे आप, जिसको सुख होगा तो होगा, मुझे तो नहीं होगा, मुझे 4-4 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, वो दुख का कारण बनेगा। तो वस्तु जो है वो अपने आप में सुख नहीं देती, अपने आप में सुख नहीं देती। हमारे मन के अंदर भाव उठता है कि ये वस्तु सुख की है, वो वस्तु सुख की। मैं एक बात आप देखिए कि एक सवाल छोटा सा मैं ऑडियंस से आपसे पूछना चाहता हूँ। 24 घंटे का अपना दिन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा सुख आपको कब होता है? सुबह? कब? सोते हुए ना, नींद में। अब आप बताइए, नींद में जब सबसे ज्यादा सुख होता है उस वक्त कौन सी वस्तु आपके पास होती है, या किस वस्तु का आपको सपोर्ट मिलता है? आपका बैंक बैलेंस आपको याद रहता है नींद में? नहीं रहता। आपका पोर्टफोलियो जो है वो याद रहता है? नहीं रहता। आपकी क्या संपत्ति है उसके बारे में याद रहता है? नहीं रहता। इन सब के बगैर भी अगर सुख की उपलब्धि आपको हो रही है तो फिर इन सब की जरूरत क्या है? इन सब के बगैर अगर सुख मिल रहा है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो ऐसा है, आपने पूछा कि प्रैक्टिकल लाभ क्या है। मैं कहूंगा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लाभ इकोनॉमिक है। बिल्कुल ऐसा है कि जिसको इस बात का ज्ञान हो गया कि इस वस्तु के अंदर सुख नहीं है, वो खरीदेगा क्यों? जैसे एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन, और मेरा ये OnePlus का फोन, एप्पल का फोन होता करीब लाख रुपए का, मेरा होगा 10-15 हज़ार रुपए का। अगर मुझे ये ज्ञान हो गया कि भाई वो सुख देने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, तो फिर मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा? मेरे 90,000 बचे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे 90,000 बचे। और दूसरी बात ऐसी है कि आप सब जितने भी हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा मिलेगा तो सुख होगा, नौकरी बड़ी हो जाएगी तो सुख होगा, गाड़ी BMW आएगी तो सुख होगा, वो होगा, ये होगा, अमकाना ढिमकाना सुख होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक खेल छोटा सा, मैं अक्सर ये खेल खेलता हूँ लोगों के साथ। मैं आपसे कहता हूँ कि आज रात को आप सोएंगे नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तैयार? 1 लाख दूंगा। कोई कहेंगे ठीक है भाई आज रात जाग लेंगे, मुफ्त के 1 लाख मिल रहे हैं, क्यों छोड़ो। मैं कहता हूँ कल भी नहीं सोएंगे आप, 2 लाख दूंगा। परसों भी नहीं सोएंगे, 3 लाख दूंगा। चौथे दिन भी नहीं सोएंगे, 4 लाख दूंगा। कोई तैयार है? आप बोलेंगे रखो अपने पैसे अपने पास, मैं जा रहा हूं सोने। तो आपको पैसे से ज्यादा, घर से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा, आपकी सब चीजों से ज्यादा आपको जब नींद प्रिय है तो वो वस्तु, उसको हमारे शास्त्र में कहते हैं वस्तु निरपेक्ष सुख। वस्तुओं के बिना आपको सुख हो रहा है तो वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो सबसे पहला लाभ यह है कि पैसे बचते हैं वेदांत से। बहुत सही विश्लेषण किया आपने। दूसरा ऐसा है, अच्छा मैं ये कहूँगा वेंकट ने जो है साजिश की है। साजिश वेंकट की ये है कि हमारा ये वाला जो सेशन है ये लंच से बिल्कुल जोड़ के रखा। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना है जाके खा ले। खैर, तो दूसरी बात ऐसी है
दूसरी बात ऐसी है कि हमको सबको सुख चाहिए, सुख चाहिए। अब वो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उस विषय में वेदों में कहा गया, उसका जवाब दिया गया है कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यक करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। सुख किसको मिलता है, इसकी व्याख्या वेदों ने की है, और वेद कहते हैं कि एकम रूपम बहुधा यक करोति, वो जो आत्म तत्व है जो एक है और जो अनेक रूपों के अंदर दिखाई देता है। जैसे नेटवर्क एक है, अनेक मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग रूप से दिखाई दे, किसी के फोन में हैप्पी बर्थडे का मैसेज आ जाता है, किसी के फोन में वो गुस्से वाला इमोजी आ जाता है, वो लाल वाला क्या कहते हैं उसको, हाँ आ जाता है, किसी को गालियाँ आ जाती है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। नेटवर्क एक ही है, वो फोन के अंदर उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप से होती है। उस तरह से एकम रूपम बहुधा यक करोति, जो एक है और अनेक रूपों के अंदर रूपायित होता है, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, वही मेरा आत्मा है, ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, उसी को शाश्वत सुख मिलता है, न इतरेषाम, इतर लोगों को सुख मिलता नहीं है। हम कोशिश करते भागते हैं सुख के पीछे, किंतु सुख मिलता नहीं है। तीसरी बात, आज का हमारा जो जीवन है, उस जीवन के अंदर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। मैंने मान लिया आज इनोवा खरीदी, तो कल के दिन दीपक जाके एक BMW लेके आएगा। अच्छा, इसने प्रभु ने इनोवा ली है, मैं लेता हूँ, क्या BMW लेके आएगा। मैं मान लीजिए लंदन गया तो वो न्यूयॉर्क जाएगा। तो ऐसे कंपटीशन कंपनीज के अंदर, व्यापार के अंदर, इसके अंदर उसके कंपटीशन बहुत है। अब ऐसा है, ये कंपटीशन क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग रूप में अपने आप को जानते हैं। ये अलग है, दीपक अलग है, पवन अलग है, सुरेंद्र अंकल अलग है, वो अलग है, ये अलग है, संदीप अलग है, ये सब अलग अलग हैं, ऐसा हम मानते हैं। अध्यात्म वेदांत हमको ये सिखाता है कि हम अलग नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस जमीन के ऊपर हम बैठे हैं कनेक्टेड है, जिस हवा से सांस ले रहे हैं वो कनेक्टेड है, जो पानी हम पीते हैं वो कनेक्टेड है, हाँ। और टेम्परेचर देखिए, सारा रूम के अंदर टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर, सारा कनेक्टेड है हम सब लोग। तो इसलिए जो है हमको ऐसा लगता है कंपटीशन के अंदर जो है वो आगे निकल गया, मैं आगे निकल, दुखी हो गया। एक बार क्या हुआ कि दो दोस्त थे सिंधिया वाले, सिंधिया से पास हुए, दोनों ने IIT किया, IIT में दोनों पास हुए। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी दुकान खोली, एक ही सड़क के दो तरफ दुकानें खोली। इधर मेरी दुकान, इधर दीपक की दुकान, हमारी दुकानें लग गई। इधर भी अच्छा व्यापार चल रहा है, इधर भी अच्छा व्यापार चल रहा है। हुआ ये कि मैं दीपक की दुकान को देखूं तो मुझे लगे यार कितने वहाँ पर ग्राहक हैं, उसके पास कस्टमर्स कितने हैं, वो अगर मेरे तरफ आ जाएं तो मेरा धंधा बढ़ जाएगा। वो दीपक वहाँ बैठा है, वो देखता है अरे प्रभु की दुकान में इतने, वो अगर मेरी तरफ आ जाएं तो मेरा धंधा बढ़ जाए। ये सोच सोच के दोनों का BP बढ़ गया हमारा। BP, हाइपरटेंशन, उसके साथ फिर स्ट्रेस, फिर उसके साथ और बीमारियां, सारी बीमारियां शुरू हो गई। तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर तनेजा यहाँ बैठे, उनके पास गए, डॉक्टर साहब हमको ऐसी बीमारी हो गई, क्या हुआ? तो जो है वो बता दिया भैया ऐसा ऐसा होता है। डॉक्टर ने कहा भाई इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो दोनों हम लोग जो है फिर एक ऋषि के पास, एक साधु के पास गए। हमने कहा कि महाराज हमारी समस्या ऐसी है, उसकी दुकान को देखता हूँ मुझे जलन होती, मेरी दुकान को देखता हूँ उसको जलन होती, और कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है, टेंशन, स्ट्रेस, सारा कुछ हो रहा है, क्या करें? तो उसने कहा ऐसा करो कि तू जो है उसकी दुकान में बैठ, उसको जो है अपनी दुकान में बिठा, यहाँ से तू देखेगा अरे मेरी दुकान में कितने लोग आ रहे हैं, और वो वहाँ से देखेगा मेरी दुकान में कितने लोग आ रहे हैं, तू भी टेंशन फ्री, ये भी टेंशन फ्री, जा। वेदांत हमको ये सिखाता, बहुत बढ़िया। वेदांत जो है ना हमको ये सिखाता है। तीसरी महत्व की बात ऐसी है कि वेदांत में ये कहा गया है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। जगत मिथ्या है ऐसा कहा गया। मिथ्या शब्द का अर्थ लोग लगाते हैं झूठा, झूठा नहीं है। मिथ्या का अर्थ ऐसा है कि वो किसी काम का नहीं,
है ना। तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, नोटबंदी हुई, बैठो तनेजा, कहाँ जा रहे हो? तो सॉरी, वो मेरा क्लासमेट। तो नोटबंदी हुई, नोटबंदी हुई। नोटबंदी होने के बाद एक बार क्या हुआ कि मेरे पास कुछ पुराने नोट थे, 1000 के भी थे, तो मैंने 1000 के 2 नोट रखे और 500 के 4 नोट रखे। तो कितने हुए टोटल? 4000 हुए ना। 500 के 4 नोट 2000 हुए, 1000 के 2 नोट 4000 हुए। वो वास्तव में देखे तो मेरे पास कितने हैं? नोट तो 4000 के हैं, किंतु उनकी वैल्यू 2000 है। उसी तरह से ये जगत जो है दिखाई दे रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 के नोट के बराबर है। तो जब कोई वस्तु हमारी छूट जाती है, हमारी वस्तु का लॉस हो जाता है, हमारी वस्तु चली जाती है, हमारी वस्तु नष्ट हो जाती है, हमको बड़ा दुख होता है। हमारी वो चली गई चीज़ चली गई, मोबाइल फ़ोन खो गया, चिंता होती, बड़ी चिंता होती है। तो 1000 का नोट जेब में रखा हुआ जो है वो अगर खो जाए तो क्या होगा? आपकी जेब में 1000 का नोट है जो बंद कर चुके मोदी जी, उसको अगर आप खो जाए वो, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना, जगत के मिथ्यात्व का जब ज्ञान हो जाता है, उस समय फिर जगत की वस्तुएं अगर खोने लग जाए, छूटने लग जाए, मृत्यु हो जाती है, वस्तुएं खो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, कई बातें होती हैं। जब हानि होती है हमारी, तो उस समय फिर जो वेदांत जिसने पढ़ा है या उस रास्ते पर जो चलता है, उसको दुख नहीं होता। गीता में भगवान ने क्या कहा कि जो स्थितप्रज्ञ है उसको लाभ का, अलाभ का, हानि का, जय का, यश का, अपयश का, पराजय का, विजय का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 के, आपने मुझे 1000 का नोट दिया, मैं खुश हूंगा क्या? आपने मुझे 1000 का नोट दिया, मैं खुश हूंगा क्या? 500 का देंगे तो होगा, मैं 1000 के नोट से नहीं हूंगा। तो इसलिए जो है चौथा फायदा यह है सुमन की, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहा कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। इसको जानने वाला जो है ना, फिर उसको कोई शोक नहीं होता, उसको कोई मोह नहीं होता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने मजे से रहता है। तो अगर आपको मजे से रहना है तो जगत को 1000 का नोट समझ के उसको रखिए, रहने दीजिए। खो जाए तो खो जाए, रह जाए तो रह जाए। उसके बाद अंत में ऐसा है कि वेदांत से लाभ ये है कि वेदांत हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है। हमारे यहाँ वेदों में मंत्र आते हैं, अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्म। ये मंत्र क्या है? इसमें कहा गया कि अग्नि देवता जो है वो मेरी वाणी में रहता है, वायु देवता मेरी नासिका में रहता है, सूर्य चंद्र मेरी आंखों में रहते हैं। तो ये सारा, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे आंख में, नाक में, कान में भरी हुई हैं, तो मैं डरूं किससे? बिल्कुल बिल्कुल, डरूं किससे मैं? हमको सबको भय बना रहता, भय, डरते रहते हैं हम सब लोग। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो वेदांत से आता है। तो उसके अनेक, ऐसा समय नहीं है, मैडम भी बोलने वाली है और लोगों को खाना भी खाना है। तो संक्षेप में आप समझिए, सुख अगर पाना है, सुख अगर पाना है तो आपको वेदांत की शरण में, गीता की शरण में ही जाना होगा, अन्यत्र सुख नहीं है। आप चाहे कितनी भी लंदन की ट्रिप्स कीजिए, न्यूयॉर्क की ट्रिप्स कीजिए, आप प्रधानमंत्री भी अगर बने तो भी सुख नहीं है। बेचारे को देखिए कितनी तकलीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानराज जी, हम अगले प्रश्न पे आते हैं जी। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म ईश्वर की परिकल्पना के बिना अधूरा है। तो ईश्वर के संबंध में अनेक मतभेद हैं, अनेक भ्रांतियां हैं। ईश्वर है भी कि नहीं, ये भी एक प्रश्न सवाल है। हाँ। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ईश्वर की, देखिए अब आप ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर है या नहीं ये हमको अगर डिसाइड करना है तो वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि ईश्वर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई इस हॉल में ज्ञानराज माणिक प्रभु नामक व्यक्ति है या नहीं, ऐसा पूछा किसी से,
तो क्या करोगे? जो पहचानता नहीं है मुझे क्या बोलेगा? जो मुझे पहचानता नहीं है वो क्या बोलेगा? फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि दाढ़ी वाला है, हाँ, काला है, हाँ, ये बताना पड़ेगा आपको। दाढ़ी वाला है, काला है, कुर्ता धोती पहनता है, उसके पास एक लाल रंग की शाल होगी। तो ऐसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता सकूंगा हाँ भाई ये आदमी इस हॉल के अंदर है। ठीक है, अब आप ईश्वर के विषय में पूछ रहे हैं, आप ईश्वर को डिफाइन कीजिए, मैं बताता हूं है या नहीं। ऐसा है, ईश्वर को डिफाइन करना ह्यूमन इंटेलेक्ट के बाहर की चीज है। इंसान जो है वो ईश्वर, क्योंकि ऐसा है हम बहुत छोटे हैं, और ईश्वर जो है ना टोटल कॉन्शियसनेस, वेदांत में उसको कहते हैं टोटल कॉन्शियसनेस इज गॉड। हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको सबको मिला दिया जाए तो ईश्वर बनता है। तो वो बहुत बड़ा है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसकी डेफिनेशन के लिए ऐसा है, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न लभ्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, अनुमान से नहीं जान सकते, किसी प्रमाण से नहीं जान सकते, उसको जानने का हमारे पास एकमात्र साधन जो है वो क्या है? वो वेद है। तो वेदों ने परमात्मा के स्वरूप को डिफाइन किया। क्या है वो? तो कहा अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा कैसा है? तो सत्स्वरूप, एग्जिस्टेंस। उसका स्वरूप क्या है? एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस, ये उसका स्वरूप है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके अंदर एग्जिस्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा कोई आदमी यहां पर है जो एग्जिस्टेंट नहीं है? कोई ऐसा हो कि आई एम नॉट एग्जिस्टेंट? हाथ उठा दीजिए, उसको 1 लाख रुपए के इनाम देंगे। नाइस वन सर, नाइस वन। नहीं, उसने कहा जिस व्यक्ति को आप यहां देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है, वो कोई और है। तो फिर किसी और के एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया उसने। नाइस वन। तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने एग्जिस्टेंस से इनकार करे। तो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज गॉड। परमात्मा का स्वरूप क्या है? एग्जिस्टेंस है। और वो एग्जिस्टेंस कैसा? इनफाइनाइट, अनंतम ब्रह्म। अनंतता भी है, इंफिनिटी भी है। तो कैसे इनकार कर? देखिए, ये लोग कहते हैं ना गॉड इज नोवेयर। तो जब वो गॉड इज नोवेयर कहते हैं ना, तो उसका जो पंक्चुएशन उनकी गलत हो जाती है। उनको अंग्रेजी ठीक से, सिंधिया स्कूल के नहीं पढ़े हो। गॉड इज नाउ एंड हियर, गॉड इज नोवेयर। उस पंक्चुएशन करेक्ट लीजिए। वो जो डब्ल्यू है ना उसको इधर हटाइए। गॉड इज नाउ एंड हियर। और कहते हैं वेयर इज गॉड? वेयर, अच्छा देखिए, पागलों जैसे सवाल करते हैं कि वेयर इज गॉड। देखिए, वेयर, जब वेयर इज गॉड आप पूछते हैं तो किसी एग्जिस्टेंट वस्तु के बारे में, वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई चश्मा, वेयर इज माई पेंसिल, ऐसे ही पूछेंगे ना। तो इसका मतलब क्या? वो वस्तु है, वो आपको मिल नहीं रही, इसलिए आप पूछ रहे हैं वेयर इज गॉड। तो जगत में अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो सब तरफ भरा हुआ, हर चीज के अंदर भरा हुआ है। और विज्ञान का नियम भी है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। तो अस्तित्व तो सब तरफ है। तो इसलिए हम ये जो कहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, ऐसा कहने के, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए जिस वाणी का उपयोग हम करते हैं वो स्वयं परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। वो स्वयं, जैसे बोलता हूं ना, मैं बोल रहा हूं, वेद कहता है ये न रूपम रसम गंधम शब्दांत स्पर्शागोष्ठम। शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकलते हैं वो किसी और शक्ति से निकलते हैं। अगर शरीर के अंदर शब्द निकालने की ताकत होती, मुर्दा भी बोलता मुझे क्यों जला रहे? मुर्दा नहीं बोलता ना मुझे क्यों जला रहे, मुर्दा नहीं बोलता। मुर्दे में सुनने की ताकत नहीं है, बोलने की ताकत नहीं। वो बोलने की ताकत, सुनने की ताकत जहां से आती है उसी को हम ईश्वर कहते हैं। वो ताकत है, इसलिए ईश्वर है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं ज्ञानराज जी। जैसा दीपक जी ने अपने उद्बोधन में बताया, आप मानिक प्रभु संस्थान के 6वें पीठाधिपति हैं और आपके पूज्य पिताजी श्री सिद्धराज मानिक प्रभु और स्वयं सिंधियन थे। उनके मार्गदर्शन में आपने अपने आध्यात्मिक शिक्षण की शिक्षा ग्रहण की। तो एक प्रकार से अध्यात्म आपको विरासत में मिला है। तो आपकी आध्यात्मिक साधना और उपलब्धि में सिंधिया स्कूल से मिली शिक्षा की क्या भूमिका रही? ऐसा है,
एक उदाहरण दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अरब देशों में, खाड़ी देशों में तेल निकलता, क्रूड ऑयल, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है। उस क्रूड ऑयल में शक्ति तो है, मगर उस क्रूड ऑयल को सीधे सीधे लाके आपने अपनी कार में डाला या मोटरसाइकिल में डाला, चलेगी क्या वो? बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। है उसके अंदर ताकत है, कार को चलाने की ताकत है, मोटरसाइकिल चलाने की ताकत है, सारी ताकत उसके अंदर है। वो अरब देशों से आप बोतल में भर के ले आए, मान 5 लीटर के ले आए दुबई से, आप इसे उसको कार में डाला, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसके ऊपर संस्कार करने पड़ते, जिसको रिफाइनरी कहते हैं। रिफाइनरी के अंदर उस तेल के ऊपर संस्कार किए जाते हैं। जैसे सोना है, जमीन में से जो सोना निकलता है उसकी वैल्यू है क्या? नहीं, वैल्यू है, मगर वो उपयोग में आता है क्या? वो सोना नहीं आता, उसको फिर रिफाइन करना पड़ता है। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है या कहिए मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है कि परंपरा से जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान मुझको प्राप्त होता रहा है विरासत में। किंतु मैं ये कहूँगा कि मेरे ऊपर जो संस्कार, तो मैं कह रहा था कि हमारे जो टीचर्स थे उन वर्मा जी, आपके पिताजी, आत्माराम शर्मा जी, साई साहब और अन्य जितने भी टीचर्स थे, उनके जो संस्कार हुए, उन संस्कारों के कारण जो है उस तेल के अंदर जो है वो क्रूड ऑयल जो है उसके ऊपर संस्कार कीजिए, आप उसको रिफाइन कीजिए, हवाई जहाज उड़ा देगा वो। बिल्कुल है? और वैसे ही अगर उसको गाड़ी में डालोगे तो चलेगा। दूसरा ऐसा है कि बड़ी मैंने सोचा इस विषय में कि भाई स्कूल में हमको क्या मिला, क्या मिला, मतलब हमारा फायदा क्या, आध्यात्मिक फायदा क्या हुआ? तो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। उसको कहते हैं षट संपत्ति, 6 चीजें होनी चाहिए। कौन सा? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, ये 6 चीजें। शम शब्द का अर्थ है अपने मन के ऊपर कंट्रोल, अपने मन के ऊपर कंट्रोल। मैं ये मेरी बात नहीं कर रहा, आप सब लोग जो जो सिंधिया में पढ़े, सबको मन के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया गया क्या? नहीं। माँ बाप को छोड़ के रहो, मोबाइल फोन इस्तेमाल मत करो। हाँ, हमारी तो चिट्ठियां लिखते थे, हाउस मास्टर पढ़ लिया करते थे, ऐसे क्यों लिखा तूने, वैसे क्यों लिखा तूने, चिट्ठियां तक पढ़ते थे। न्यायाधीश महोदय, सर ये हमारे ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर उल्लंघन हुआ सिंधिया स्कूल में, आपका भी हुआ होगा, आपका भी हुआ होगा। चिट्ठियां पढ़ लेते थे। अब मन के ऊपर कंट्रोल करना सिखाया गया। लिखा चिट्ठी के अंदर हमने लिखा क्या कि पापा मुझे बहुत आपकी याद आ रही है, आते समय जो है बिस्किट के 2 डिब्बे लेके आइए। हाउस मास्टर काट देता था, उसको फाड़ देता था, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। तो मन के ऊपर कंट्रोल करना हमको सिखाया गया। दम कहते हैं, दम, दम यानी क्या? शरीर के ऊपर कंट्रोल करना। दम कहते हैं इंद्रियों के निग्रह को दम कहते हैं। अब सुबह 5 बजे उठो, हाँ, सुबह 5 बजे उठो, वो गर्मी के लिए लाइन में खड़े रहो। हाँ, गर्म पानी आता था ना गर्मी में, वो बकेट लेके वहां लाइन में खड़े रहो। पीटी के लिए दौड़ो, फिर वो प्रीफेक्ट कोई मिल गया खन्नाट तो 4 राउंड लगाओ, 5 राउंड लगाओ। दम, यही तो दम है, शरीर के ऊपर निग्रह करना, यही दम है। वो वहां से सीख लिया। तितिक्षा, तितिक्षा कहते हैं सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। तो कितना सहन किया हमने, आपने भी सहन किया, हमने भी सहन किया, कितना सहन किया। हाँ, सहन करने की भी सीमा होती, वो सारी सीमाएं पार करके हमने सहन की। सर्दियां सहन की, गर्मियां सहन की, बारिश सहन की, धूप सहन की, सब कुछ सहन किया। तितिक्षा। उसके बाद उपरति। उपरति यानी क्या? उपरति यानी जो चीजें मेरे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित नहीं है या मेरे आध्यात्मिक जीवन में लाभ नहीं पहुंचाती, उनके प्रति उपेक्षा। तो वो भी हमने किया, उपरति हो गई। माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, संसार को सब छोड़ दिया, किले के ऊपर कैद होकर रह गए। उपरति, उपरति। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या सीखा हमने? उसके बाद श्रद्धा। अब जो कह रहे हैं टीचर वो करेक्ट है, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। श्रद्धा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समय नहीं है वरना बहुत सी बातें। श्रद्धा, तो श्रद्धा सीखी। और अंत में समाधान। समाधान यानी क्या? समाधान यानी इतना सब जो हमने किया
वो अच्छे के लिए किया, इस बात का विश्वास। हमने जो ये श्यामदम तितिक्षा उपरत श्रद्धा, ये सारा कुछ अनुष्ठान किया 8 साल में, 9 साल में, किसी ने 6 साल में, किसी ने 10 साल में, मैंने 9 साल गुजारे। तो 9 साल में ये सब जब किया तो 75 मार्च में जब मैं बाहर निकला तो एक समाधान था मन में। किस बात का समाधान? कि ये जो कुछ हमने किया वो व्यर्थ नहीं गया, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो हमारे काम का है। ये 6 गुण जो हैं वो आध्यात्मिक साधना में कंपलसरी माने गए हैं और वो जो है ऑटोमेटिकली हमको मिल गए हमारी किस्मत से। तो हम लोग भाग्यशाली है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मानो इस बात को। चलिए, साविद्या व विमुक्ति, काफी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की। हमारा बौद्ध वाक्य है, विद्या वही है जो मुक्त करती हो। तो इस वाक्य में मुक्ति का क्या तात्पर्य है? ऐसा है, सा विद्याया विमुक्तये, ये अपने स्कूल का बोध वाक्य है। अब ऐसा है कि बोध वाक्य जो होते हैं, मोटो जो होते हैं, जैसे सत्यमेव जयते, ये हमारे भारत का मोटो है जी। यतो धर्मस ततो जयाः, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो मोटो है उसके हिसाब से ही हम चलें जी। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि जनरली होता नहीं है। साबित अपना सत्यमेव जयते पार्लियामेंट के ऊपर लिखा हुआ है, और पार्लियामेंट के अंदर कितना असत्य होता है आपको सबको मालूम है। और क्या अपना यतो धर्मस ततो जया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ कहाँ धर्म की जय हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है आपको सबको मालूम है। तो जरूरी नहीं है कि वो मोटो के साथ, हमारा जो स्कूल है वो मोटो के हिसाब से चलता है, ऐसा मेरा मानना है। सा विद्याया विमुक्त, ये जो है, ये वाक्य जो है, ये विष्णु पुराण का है। विष्णु पुराण के पहले अंश के 19वें अध्याय का 41वां श्लोक है। वो श्लोक पूरा ऐसा है कि तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। इसका अर्थ ऐसा है, यत न बंधाय तत्कर्म, कर्म किसको कहते हैं? जो बांधने वाला न हो, है ना। बिल्कुल। छोटा सा उदाहरण लेंगे, कर्म यानी क्या? चोरी मत करो, चोरी करोगे तो क्या हो जाएगा? जेल में जाओ। ठीक है। कर्म कैसा होना चाहिए? जो बांधने वाला ना हो। ये तो मैंने बहुत लौकिक उदाहरण दिया। बांधने वाला कर्म है जो संसार के अंदर हमको डुबोने वाला कर्म ना हो, तो बांधने वाला कर्म ना हो। विद्या कैसी हो? जो मुक्त करे। इसके अलावा जो भी कर्म है, इसके अलावा जो भी विद्याएं हैं, वो सब क्या है? आयासाय, केवल परिश्रम मात्र है, केवल परिश्रम मात्र है। ज्यादा से ज्यादा शिल्प नैपुणम, यानी क्या? उसको स्किल मान सकते, विद्या नहीं कह सकते। स्किल, विद्या में और स्किल में बड़ा फर्क है। विद्या में और स्किल में बड़ा फर्क है। कोई कारीगर होता है, वो इंजीनियर से भी ज्यादा जानता है, मगर वो स्किल है, उसकी विद्या नहीं है, वो स्किल है उसकी। तो सा विद्या या विमुक्त में, विमुक्ति शब्द में, विमुक्ति शब्द है, मुक्ति के पीछे वी विशेषण लगा, विशेषण मुक्त, विशेष रूप से मुक्त करे। अब मुक्ति यानी क्या? लोगों को लगता है मुक्ति यानी मर जाना, मरने के बाद मुक्ति होती, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। मुक्ति शब्द का अर्थ है कि हम जो डिपेंडेंसी है हमारी डिपेंडेंसी है, हम अपने सुख के लिए बहुत सी वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंट है। माँ पर डिपेंडेंट है, बाप पर डिपेंडेंट है, पैसे पर, बीवी पर, नौकरी पर, कोर्ट पर, कचहरी पर, सरकार पर, मोदी जी पर, इन सब के ऊपर हम डिपेंड। हमको ऐसा लगता वो सारा ठीक हो जाएगा सिस्टम, तब हम सुखी होंगे। वो सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है, आप सुखी होने वाले नहीं है। मुक्ति यानी क्या? वो डिपेंडेंस समाप्त हो जाना। डिपेंड, जैसे वो जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, वो हाथ में लकड़ी पकड़ के चलते हैं, एक छड़ी होती है उनके पास, छड़ी लेके चलते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। वो छड़ी नहीं रहेगी तो वो गिर जाएंगे, छड़ी नहीं रहेगी चल नहीं पाएंगे। उसी तरह हम डिपेंडेंट हैं अपने परिवार के ऊपर, पैसे के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, कचहरी के ऊपर, सबके ऊपर हम डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंस के खत्म होने का नाम, डिपेंडेंस के समाप्ति का नाम मुक्ति है। बिल्कुल। वो मुक्ति जो है, जो प्रदान करती है, उसी को विद्या कहा गया है। तो ऐसी विद्या जो है वो हमको सिंधिया स्कूल से मिली। मैं समझता हूँ मुझको तो मिली, आप लोगों को भी मिली, मुझे भरोसा है। तो ऐसी विद्या देने के लिए ही सिंधिया स्कूल है। अब ये सिंधिया स्कूल का अपना बोर्ड के मेंबर्स भी बैठे हैं, तो बोर्ड का अपना एक है, वो मोटो के हिसाब से हम चलें या अपना उसको एक
शोभा के रूप में लोगों के नीचे लिखने के लिए सा विद्याया विमुक्ते उस तरह से इस्तेमाल करें या उसको आचरण में लाए, ये जिसका उसका अपना अपना प्रश्न है। ज्ञानराज जी, स्कूल का हमारा गीत है, हमारे सभी के अंदर एक रचा बसा है। स्कूल को पुण्य तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, हे विद्या के दाम कहा गया है। तो पुण्य तीर्थ और ज्ञान तीर्थ की सार्थकता क्या है? ऐसा है, ये जो गीत है ये आपके पिताश्री ने लिखा है और उसके जो शब्द हैं बड़े सुंदर शब्द। भारत की आत्मा से चित्रित हे गुरुकुल के ग्राम। देखिए क्या मतलब, अब आपके मुंह पे मैं आपके पिताजी की तारीफ करूं, हमारे गुरुदेव हैं, मगर भारत की आत्मा से चित्रित, देखिए कितनी बड़ी बात है। स्कूल सॉन्ग के अंदर का एक शब्द है ना, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। तो आप कह रहे थे पुण्य तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, विद्या के दाम, ये जो शब्द हैं, तो ऐसा है कि भगवत गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? भगवत गीता की शुरुआत होती है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो वहाँ भी उस क्षेत्र की बात की गई है। तो ये जो स्कूल है, ये तीर्थ यानी क्या? तीर्थ यानी तरति पापादिकम अस्मात् इति तीर्थम। जहाँ से पापों की निवृत्ति होती है वो तीर्थ है, जहाँ दुख की निवृत्ति होती है वो तीर्थ है। विद्या से जो है दुख की निवृत्ति होती है, विद्या का तीर्थ है। और वैसे भी ऋषिगालव की तपस्थली है। तो इसलिए जो है वर्मा जी ने, सर ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, पुण्य तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, हे विद्या के दाम, ये बिल्कुल एप्ट और करेक्ट है। उसमें भी जो सबसे बढ़िया पंक्ति है स्कूल सॉन्ग की, वो भारत की आत्मा से चित्रित हे गुरुकुल के ग्राम है। बहुत बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया। और शिक्षा पे मैं दोबारा आऊँगा। ज्ञानराज जी, मैडम आज हमारे बीच हैं। प्लेजर टू हैव यू अमंगस्ट अस, मैम। You've been practicing different modes of therapy which involves healing, hypnotism and many such traits. So the audience would like to know, how does spirituality correlate with your therapy work? महाराज जी ने सब कुछ बोल दिया है, मेरे स्पिरिचुअलिटी पे बोलने को तो कुछ है नहीं। आप अपने थेरेपी को थेरेपी I would just like to bring out that basically beginning with quoting Einstein, who said that our bodies are the instruments through which the soul plays its music. Now in therapy, if I correlate it to therapy, we work with the body to make it clear and fit. It's already charged with the life force energies, to make it clear and fit so that the soul can play its music. Now if the instrument is good or bad, poor, we don't know. The quality of it will depend on the mind matter matrix. Right. Now science tells us that everything is energy, frequency and vibration. So your mind, your bodies are vibrating at a certain frequency, and you break down matter, it breaks down into molecules, it breaks down into atoms, it breaks down into subatomic particles, और उसके नीचे होता क्या? Pure energy. And that pure energy is common to me, you and everybody else, animals, plants, the whole of nature. So that is that energy field with which we can all touch base with, and there are various modalities, various ways of approaching it. But in the work that I do is we release the blocks that are there which are blocking you to connect with the life force energy. And how we do it, I'll come in a while. It's something like a main pipeline of electricity coming from outside and lighting the bulbs inside your house. And you, every time the bulb is getting fused, आप एक bulb बदलते हैं, दूसरा बदलते हैं, problem नहीं resolve होता. Problem तब जाके resolve होता है जब आप बाहर जाके pipeline को देखते हैं. You check the pipeline and see there is something wrong there. There's something not working correctly there. What is the pollution? What are the contaminants? Now those pollution and contaminants are coming in the form of our thoughts and emotions, which block the free flow of the life force energy that जिसको महाराज जी ने सच्चित आनंद describe किया है. It's available to all of us. It's a frequency. You get in touch with it and your life changes. Now when it is blocked with all the belief systems, all the thoughts and emotions which we hold, that's exactly what is creating our reality on the outside, जिसको हम समझ रहे हैं कि वो बाहर कुछ अपने आप हो रहा है. We are hapless victim. ऐसा नहीं है. You are not hapless victims. You are empowered. You need to understand what are you thinking, what are you feeling, and what are your belief systems that you're carrying. Now our normal belief systems, everybody goes through experiences of guilt, of fear, of helplessness, of sorrow, of anger, of frustration. These are the normal belief systems, normal emotions which we feel, which are fired by certain belief systems. Now in therapy work, our job is to work with you, or in the persons who come to us,
to change fear into faith, helplessness into empowerment, to change guilt into learning, and finally reach a place where you are in a more empowered space, so that these emotions which are lodged deeply in the cells of your body start releasing. Each one of us are releasing an energy signature. Now that energy signature which you release is picked up by others subconsciously, which then invites to you situations, circumstances, people in your life which create your reality. Now all of you can go down your memory lane and maybe you pick up certain emotions which have been predominant in your life. Just think about it, just take a minute and just quickly think, what is your predominant emotion? Now if that has been a predominant emotion in your life, then check back in your outer reality. When you look at your outer reality, you will find that it's exactly representing that. For instance, if you have lived your life with helplessness, you will attract people in your life who have been dominant, who have been competitive with you, who have been authoritarian, who have made you feel small, insignificant, right? Then there will be series of peoples like that. That then shows that it is a pattern in my life. Now, why is it a pattern in my life? Why are these people in my space? I need to learn the lesson. I need to focus on the brilliance. So in a therapy setup, we focus the searchlight on that subconscious part of your mind, which shows you where the event began. What was the event which contributed to this emotion? So we go down the memory lane, we will go down to the time when you were a child, maybe 7 years of age, 8 years of age. Till then all the programs are set in place. आपका जो software है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है and it is already fixed. Then those programs become repetitive. You continue to invite those experiences again and again in your life till you wake up one day and question, why is this happening to me? And then your journey towards spiritualism begins and you look for a guru or a master or for some therapeutic help, so that at least you can start understanding yourself. Where did you pick up those emotions from? What is the reason for it? Now in therapy, we will help you to catharsize the process, understand the emotion correctly, release the charge from your body, and focus on the brilliance of it. When you start understanding that maybe however bad a situation, there was actually a gift behind it, and that gift becomes a part of your repository, a part of your resource, and then you can start shifting, look at life differently. Now when you understand that these are my emotions which have created that reality for me, and every time you find something is not working outside for you, go within, figure out what was the need for you to create this, what was the learning that you were to get, what was the pattern that your life was following, what was it teaching you. Now going towards spirituality essentially means that you grow and evolve to that essence which you truly are. जैसे वो स्वभाव के बारे में बात की थी, उस स्वभाव से आपको जुड़ने के लिए ये जो चीज़ें हैं आपको अपनी स्पेस से हटानी पड़ेंगी. अब हम ये हटाने के लिए हमें उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा. जड़ पे जाने का मतलब है we look into the stories in therapies, what happened when you were a young child, what happened when you were in your mother's womb, what happened in your lineage, आपकी lineage में क्या emotional patterns आ रहे हैं, what are the significant events in your lineage which may have contributed to the story of your life, and then even your soul plan. Maybe your soul is wanting to experience something which you need to figure out what is it and how is it that you can truly correctly get the message and evolve and grow out of it. Then of course your past lives which you bring along with you, जो आपके संस्कार बनते हैं, आपकी एक प्री प्रोग्रामिंग बन जाती है जिसको आपको लेके आना है. क्या चीज़ है जो हम बार बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसको हम डिकोड करके उससे दूर नहीं हट पा रहे. So once you are able to understand that, you become the true channels. Each one of us is unique. Like we know our irises are unique, our fingerprints are unique. There is nobody in the whole world like you. There is nobody, right? Yet we get caught in the competition, competitiveness, drama, comparison drama. All our life we do that, you know, this one has become richer than me, this one is looking more beautiful than me, this one has so much money more than me, why don't I have? And sometimes we use it as a tool to inspire ourselves. But we can actually change the formula of growing through this sense of lack which we acquire and growing through inspiration. We may use somebody's success as inspirational for us, but if we focus on the lack part of it, we are definitely not going to reach there. We are definitely going to invite more lack. So these are some of the ways in which we work. Now being human for me essentially means that we recognize our uniqueness, align with the life force energy, clear the blocks to it so that we can really express our essence
for which we came on earth. That truly is our purpose of being here on this earth plane, to figure out what is it that we have come here to contribute through our essence, which is unique, like nobody else has it. But that's the journey, and that is where therapy comes in. You know, it helps us to align to who we truly are. Very well explained, ma'am. So, Thank you. my next question is, ma'am, it is said, and somewhere I've read, 90% of the time we are driven by our subconscious mind. Yeah, true. And can you amplify and elaborate about the subconscious wiring? Sure, sure. And like I mentioned, we want success, right? You're looking at success as something outside of you firstly, and at the things that you can acquire in your life. So 10% of your mind is your conscious mind, 90% of your mind is subconscious. Now mind is not in the brain. There is a difference between brain, which is your hardware, and the software of your mind. Software is the programs that we create through the journey of life. Like I mentioned earlier, the time you are in your mother's womb, the programs acquired in early life, your ancestral programs, your past life programs, that becomes your software. And that becomes your essential nature through which you now project yourself in the world. Now those essences are lying in the subconscious part of your mind. So your subconscious mind is habitual and reflexive because it has experienced these programs again and again and again, so it doesn't have to think, it just reacts from those spaces. Then your conscious mind is your power to rationalize, your power to assess, your power to read what is happening around you with your senses, your power to create visions, your power to imagine. And your subconscious mind is generally habit, which is pre-programmed through these programs which I just mentioned, and they get coded. They will get coded into your folders of your subconscious mind as pleasure code and pain code. Supposing you have been receiving abuse in relationships. Now abuse in relationships will get into the folder of pleasure, even though it is a painful experience, but since it is known, the body mind, your subconscious mind, it is familiar, it is comfortable, so it will go and put itself in the folder of pleasure. Now to say that you can be free of all this, you can get in touch with your life force energy, with your essence and your uniqueness, and you can express it all, that will come instinctively in the folder of pain, simply because it is unfamiliar. You're so much used to living in the comfort of your stagnancy or the comfort of your familiarity with certain patterns that to step out of it is also painful. So once we understand what is it that I have made my pre-programming or inherited it from various sources, then I can start working with it. Now that subconscious mind is 90% more than the subconscious mind. It is about 6,000 times more powerful than your conscious mind. So even if you try to change your things or your patterns or your habits, there will be an intrinsic resistance. It's actually difficult to change, otherwise it would be so easy for all of us to step from here into faith, into evolution, into doing the best for us. Like smoking, very few people are able to leave smoking through willpower. Smoking, logic tells you it's something which is not really good for your health. It's not good for you even otherwise, and you're addicted to it, you want to leave it. But you can't, because it is something in your subconscious mind which links smoking with acceptance by your peers, which links smoking with macho image. I look so grand if I smoke, and the smoke just goes out and twirls, it looks so majestic and it feels good to me. So those are, what void are you trying to fill with smoking? We look at the void. Once you start working on the void, it is easier to move on ahead in the journey of your life, right? 1 minute, sorry, so just take a sip of water. So subconscious mind I was talking about, say a child is born in the family of thieves, okay? Now in the family of thieves, what is he rewarded for? You go and pick this person's pocket, you get this much of money, the father says, excellent, you've done a great job.
So the program is built that when I go and pick pockets, I am rewarded, and that's you know, it's really great. His self-esteem builds up as a thief. In another case, there is a family setup where the parents are constantly fighting. Father is authoritarian, mother is helpless, so the child picks up the mother's programs of helplessness. So all through life, she will go through experiences of helplessness. Now that is one illustration. In the same setup, another child may become a rebel, that this is not acceptable to me. The father is going to behaving like this, I need to take revenge. You know, it's not obvious, but it becomes passive aggression. So that passive aggression, self-sabotage tendencies you acquire from there. And I have to be my mother's protector. Now you are your mother's protector, and you acquire those traits. You are very sensitive to boundaries. You know, somebody says something, you just react immediately. Now in that reaction, you are sabotaging your career, you are sabotaging your marriage in the future. So these are the programs which get inbuilt, and they become a part of our subconscious programming, so called. Now when something happens in the outer environment, the stimulus goes and checks the files in your folder. It goes to the amygdala first. Now amygdala is that part of you which has stored old primitive memories of fear, flight, anger responses. They are all stored there. So if it senses anything matching any of these folders, it will immediately send a signal, no, this is not safe. So your boss has frowned at you. Just imagine a situation where the boss has just frowned at you, and you say, oh, now he's going to shout at me. So even before he said anything, he's frowned maybe because he fought with his wife, but it doesn't matter. You are perceiving it as a threat to you. And your reaction, you have already thought in the morning that he's going to say this to me, and this is going to be my response. So you are reacting. And then of course the situation blows out of proportion, and it creates a mess up in your life, in your work life, because your annual report is due around the corner, and you for sure know what's going to come up there. So then what happens is your neofrontal cortex, which is the thinking part of your mind, thinking part of your brain, is not yet active. It's only later when you go back and see, oh my God, I could have reacted differently. Why did I behave like this? I could have been calmer, and maybe the outcome would have been different. But this thinking brain in the evolutionary history of mankind is a very later thing. Primitive mind has been there for ages, you know, billions of years we have been living with that. Now your fear, flight responses, anger responses are inbuilt, frozen responses are inbuilt. Now what happens is, in a work situation, let's say you have had a fight with a boss. You want to react, but you can't, you know, because you know you have a family to feed, you have to go back to work, you cannot fight. And you say, yes sir, and you come home, and you in your inner world, there is a constant fight. You're even bashing up the boss and whatever you are doing, that's all happening inside you. Now inside you, what is happening is, you cannot express it out. In the olden days, fear flight was very useful because there was a leopard here, a tiger here, and you could energetically process that energy and throw it out of your body. But today you can't. You sit in the office chair, you go home, you sit, and then you go to sleep. So it's a very sedentary way of life. The same threats do not exist anymore. Right? Now when this feeling is there, eventually what happens? It turns into depression. So a lot of people today you find have depressive traits. We may recognize, we may not recognize them, but these are dangerous signals that are showing up. As a society, we end up getting depressed like this without processing it is very, very dangerous. Therefore, this spirituality is extremely important for us to align so that we can at least live our life fully here. I hope that clears subconscious mind to you. Thank you, ma'am. Yeah, sure. Thank you. तो एक शिक्षा पे एक आखिरी प्रश्न ज्ञानराज जी से, स्कूल में आधुनिक युग के अनुरूप एक अच्छा नागरिक तैयार करने की सभी प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है, किंतु विशेष रूप से किसी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। क्या आप समझते हैं इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, और हाँ तो किस रूप में? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसा है कि स्कूलों के अंदर धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा हो या ना हो, इस विषय में बहुत बड़ी डिबेट सारे देश में कई बार हो चुकी है। और हमारा जो सेक्युलरिज्म है, मेरा अपना मानना ये है कि वो सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पे लागू होता है। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। बाकी धर्म के लोग जो शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं, न्यायमूर्ति महोदय यहाँ उपस्थित हैं, उनके
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं आपके सामने ला रहा हूँ सर। बाकी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अपने अपने धर्म की शिक्षा सब लोग बाकी माइनॉरिटीज़ देते हैं। सेक्युलर कंट्री में माइनॉरिटी हो सकता है क्या नहीं, ये एक और लीगल क्वेश्चन है, वो छोड़िए, दैट्स अ पार्ट। कहने का तात्पर्य है कि दी जानी चाहिए। और ऐसा है कि हमारा जो अस्ताचल है वो बहुत ही सुंदर और बहुत प्रगल्भ ऐसी परिकल्पना है। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ये चाहूँगा कि सिंधिया स्कूल के विद्यार्थियों को वहाँ कम से कम गीता का एक श्लोक तो भी कम से कम पढ़ाना चाहिए, क्योंकि गीता जो है वो किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता जो ऑब्जेक्शन होगा ना कि भाई आप वो धर्म क्यों पढ़ा रहे हैं, ये धर्म क्यों पढ़ा, गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता जीवन का मैनुअल है। जैसे आप एक वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, क्या इसको कैसे चलाएं, इसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उस फिट करें, क्या उसको पावर कैसा होना चाहिए, प्लग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से गीता जो है वो जीवन का शास्त्र है। और जीवन जो है वो सभी धर्मों के लिए है। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ययी शास्त्र विस्तर है, ऐसा कहा गया। गीता जो है वो बाकी सारे जितने शास्त्र हैं वो सबका निचोड़ है, सभी धर्मों का निचोड़ है। इसलिए जो है मैं ये समझता हूँ कि गीता जो है वो पढ़ानी चाहिए। अब वो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके ऊपर है कि वो कितने सेकुलर हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। थैंक यू ज्ञानराज जी। और मैडम से भी मुझे काफ़ी डिस्कस करना था, पास्ट लाइफ कर्मास, रीबर्थ, लेकिन आई थिंक समय की कमी है, वी हैव पॉजिटिव टाइम। Last but not the least, I want to thank Delhi Soba and Central Soba for keeping the unique session on spirituality, which would be really instrumental in making our lives more enriched on the special aspects and inspiring our work life balance, improving our work life balance. और अंत में उन दोस्तों को धन्यवाद जिनकी वजह से यहाँ पर हमेशा मुस्कान रहती है। थैंक यू सोबा, थैंक यू सो मच। सविकता या विमुक्त है, विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। ओके, किले की यादें वाली कविता सर आपकी हो जाए। अरे किले से जुड़े नाते, स्पिरिचुअलिटी का जो सेशन है, ये बहुत इस सेशन की वजह से सारे लोग सीरियस हो गए बिल्कुल एकदम। अरे जीवन में दुख है, ऐसा है वैसा है, मेरा क्या होगा। अरे भूलो यार, सब भूल जाओ। एक कविता सुनो कि किले से जो जुड़े नाते अभी तक याद है। बिल्कुल, किले से जो जुड़े नाते अभी तक याद है मुझको। लड़कपन से जवानी तक सफर जो था किया मैंने, लड़कपन से जवानी तक सफर जो था किया मैंने, यहाँ की सरजमी पर जो कहर बर्पा किया मैंने, वो सुख दुख के बही खाते अभी तक याद है। तो सुख दुख के बही खाते अभी तक याद है मुझको। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। उतर घाटी दबे पैरों सिनेमा देखने जाना। उतर घाटी दबे पैरों सिनेमा देखने जाना, बहुत खुफिया तरीके से शहर की सैर कराना, वो सारी राज की बातें अभी तक याद है। वाह क्या बात। वो सारी राज की बातें अभी तक याद है मुझको। यहीं दौड़े गिरे संभले, यहीं जीते यहीं हारे। यहीं दौड़े गिरे संभले, यहीं जीते यहीं हारे। यहीं मुर्गा बने थे हम, यहीं दिन में दिखे तारे। यहीं मुर्गा बने थे हम, यहीं दिन में दिखे तारे। पड़ी थी जो हमें लाते अभी तक याद है मुझको। पड़ी थी जो हमें लाते अभी तक याद है मुझको। चिढ़ाना एक दूजे को, रुलाना फिर हंसा देना। चिढ़ाना एक दूजे को, रुलाना फिर हंसा देना। किसी मासूम को यूं ही मुसीबत में फंसा देना। चिढ़ाना एक दूजे को, रुलाना फिर हंसा देना। किसी मासूम को यूं ही मुसीबत में फंसा देना। वो शैतानी खुराफातें अभी तक याद है मुझको। बसी है जहन में मेरे, बसी है जहन में मेरे हर एक त्योहार की खुशबू। यहाँ की हर इमारत, हर दिलो दीवार की खुशबू। वो खुशबू में बसी रातें अभी तक याद है मुझको। यहीं हमने कई सपने हकीकत में बदल डाले। यहीं हमने कई सपने हकीकत में बदल डाले। सभी जज्बे सभी रिश्ते मोहब्बत में बदल डाले। यहीं हमने कई सपने हकीकत में बदल डाले। सभी जज्बे सभी रिश्ते
मोहब्बत में बदल डाले। वो याराना मुलाकातें अभी तक याद हैं मुझे। वाह, क्या बात, किले से जो जुड़े नाते अभी तक याद क्या हैं। बात। और हमेशा रहेंगे। सो आई एम श्योर आप सबको यादें याद आई होंगी। मैंने सुना था किसी सिंधियन से और एज एन एस्केवियंस ऑल्सो कि हम लोग हमेशा 2 बार रोते हैं। एक बार बचपन में जब हमारे माँ बाप छोड़ के जाते हैं, और दूसरी बार जब हम सिंधिया छोड़ के जाते हैं। So, thank you so much for such an enlightening session. I would like to call Escavians and Sindhians 5 to give the token of appreciation on the behalf of SOVA Delhi. I would like to call Priyadarshini, Priya Nandini, SKV, Smita Gupta of SKV, and Radhika, who has joined us from UK.